ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ وفاقی حکومت کا سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10% اضافے، ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز۔ نئے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام ٹیکس سلیبس میں کمی کر دی گئی ہے۔ 50,000 ماہانہ آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ 50,000 سے 1 لاکھ تک ماہانہ تنخواہ پر 1% ٹیکس لگے گا۔ 12 لاکھ سے 22 لاکھ سالانہ تنخواہ پر 6,000 روپے فکس اور 12 لاکھ سے زائد رقم پر 11% ٹیکس عائد ہوگا۔ 22 لاکھ سے 32 لاکھ روپے تک تنخواہ پر 1,16,000 روپے فکس اور 22 لاکھ سے زائد رقم پر 23% ٹیکس لگے گا۔ 32 لاکھ سے 41 لاکھ روپے تک تنخواہ پر 3,40,000 فکس ٹیکس ہوگا، جبکہ 32 لاکھ سے زائد رقم پر 30% ٹیکس عائد ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے بجٹ پیش کرتے ہوئے بتایا، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے آمدنی کی تمام سلیب میں انکم ٹیکس کی شرح میں نمایاں کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ گریڈ 1 تا 16 کے ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کی تجویز ہے، جبکہ 6 لاکھ روپے سے 12 لاکھ روپے سالانہ آمدنی رکھنے والے تنخواہ دار ملازمین پر انکم ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ 12 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے ملازمین پر ٹیکس کی رقم 30,000 روپے سے کم کر کے 6,000 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ 22 لاکھ روپے تک آمدنی رکھنے والے ملازمین پر انکم ٹیکس کی شرح 15% سے کم کر کے 11% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ 32 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ حکومت نے آن لائن شاپنگ کرنے والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کیش آن ڈیلیوری خریداری میں کپڑوں اور ملبوسات پر 2% ٹیکس لگے گا۔ الیکٹرانک اشیاء پر 0.25% ٹیکس دینا ہوگا۔ دیگر اشیاء پر 1% ٹیکس دینا ہوگا۔ ای کامرس کے ذریعے 10,000 روپے تک کی خریداری پر بینک یا آن لائن ادائیگی کی صورت میں 1% ٹیکس لگے گا۔ 10 سے 20 بار روپے تک کی خریداری پر 2% ٹیکس دینا ہوگا۔ 20,000 روپے سے زائد کی خریداری پر 0.25% ٹیکس لگے گا۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ آن لائن کاروبار کی وجہ سے ریٹیلرز کو نقصان پہنچا ہے۔ کوریئرز اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے والے ادارے ای کامرس کاروبار والوں سے 18% ٹیکس وصول کر کے حکومت کو جمع کرائیں گے۔ یوٹیوبر سول میڈیا سے کمانے پر ٹیکس دینا ہوگا۔ نیا قانون آ گیا۔ نئے قانون کے تحت آڈیو، ویڈیو اور میوزک سٹریمنگ سروسز سے کمائی شامل ہے۔ ٹیلی میڈیسن، ای لرننگ، کلاؤڈ سروسز، آن لائن بینکنگ سروسز بھی ایکٹ کے دائرے میں آئیں گی۔ ای کامرس، ای اسٹور اور آن لائن مارکیٹ بھی ٹیکس کی زد میں۔ غیر ملکی کمپنیوں سے پاکستان میں اشیاء یا خدمات کے بدلے بھیجے جانے والی رقوم پر بینک اور ایکسچینج کمپنیاں 5% ٹیکس جمع کریں گی۔ یہ ٹیکس اگلے ماہ کی 7 تاریخ سے پہلے حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کریں گے۔ ٹیکس کاٹنے اور جمع کرانے میں ناکامی پر متعلقہ بینک یا ایکسچینج کمپنی کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پاکستان میں موجودگی رکھنے والا ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم حکومت کو 3 ماہ کی رپورٹ جمع کرانے کا پابند ہوگا۔ بین الملکی خریداری پر ادائیگی کا ذمہ دار ادارہ بھی ساماہی رپورٹ جمع کرائے گا، جس میں خریدار کا نام، شناختی کارڈ نمبر، ادائیگی کی تاریخ اور رقم درج ہوگی۔ رپورٹ جمع نہ کرانے پر 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ اگر 3 ماہ تک غیر ملکی کمپنی ٹیکس دینے سے اجتناب کرے تو بینک یا ایکسچینج کمپنی اس کی طرف سے رقوم کا بھیجنا معطل کر دیں گے۔ ناظرین، غیر رجسٹرڈ کاروبار کے خلاف سخت فیصلے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ میں ایف بی آر کو مزید اختیارات مل گئے۔ ایف بی آر کمشنر رجسٹرڈ نہ ہونے والے افراد اور کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرا سکے گا۔ نہ رجسٹرڈ افراد اور کمپنیوں کے غیر منقولہ جائیداد کی ٹرانسفر پر پابندی لگائی جا سکے گی۔ کمشنر ایف بی آر نہ رجسٹرڈ افراد اور کمپنیوں کے کاروبار کی جگہ اور منقولہ جائیداد ضبط کر سکے گا۔ بار کوڈ یا ٹیکس سٹیمپ کے بغیر اشیاء کو فوری ضبط کیا جا سکے گا۔ پیٹرول مزید مہنگا۔ پیٹرول پر چلنے والی گاڑیاں بھی مہنگی۔ فرنس آئل سے بننے والی بجلی پر بھی مزید ٹیکس لگے گا۔ وفاقی بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کاربن لیوی عائد۔ پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل اور فرنس آئل پر فی لیٹر 2.5 روپے کاربن لیوی دینا پڑے گی۔ پیٹرول یا ڈیزل استعمال کرنے والی تمام گاڑیوں بشمول ہائیبرڈ کاروں پر سیلز ٹیکس کی شرح 8.5% سے بڑھا کر 18% کر دی گئی۔ 850 cc سے کم ہارس پاور کی نئی گاڑی پر سیلز ٹیکس کی شرح 12.5% سے بڑھا کر 18% کر دی گئی اور 2026-27 میں کاربن لیوی کی شرح 5 روپے فی لیٹر کر دی جائے گی۔ تیل استعمال کرنے والی گاڑیوں کی فروخت اور درآمد پر انجن کیپیسٹی کے مطابق لیوی عائد کی جائے گی۔ انرجی وہیکل پالیسی پر عمل کے لیے اہم اقدامات کا اعلان۔ پیٹرول اور ڈیزل کے بجائے الیکٹرک گاڑیوں کو ترجیح دی جائے گی۔ الیکٹرک موٹر سائیکل اور رکشوں کے استعمال کو فروغ دیا جائے گا۔
नाज़रीन, वफाकी बजट में इनकम टैक्स की वसूलियों को बढ़ाने के लिए मजीद इकदामात का फैसला किया गया है। फाइलर बनने के लिए टैक्स गोशवारे के साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवाना होगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने वाले ही कारोबार लेन देन कर सकेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट न जमा करवाने वाले गैर मनकुला जायदाद की खरीद और फरोख्त नहीं कर सकेंगे। बगैर वेल्थ स्टेटमेंट के गाड़ियों की खरीदारी भी नहीं हो सकेगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराए बगैर सिक्योरिटी और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी नहीं हो सकेगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा न करवाने वालों पर बाज बैंक अकाउंट्स खोलने पर भी पाबंदी होगी। फाइलर्स को अपनी माली हैसियत, आमदन, तहाइफ, कर्जे और विरासत जैसे माली जराए के सबूत पेश करना होंगे। बैंकों को अकाउंट होल्डर्स के बारे में मालूमात फराहमी लाजमी करार देने बारे कवानीन लाए जाएंगे। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह बढ़ाकर 1% कर दी गई। हुकूमत का कारपोरेट सेक्टर के लिए नए बजट में रिलीफ का फैसला। सालाना 20 करोड़ रुपए से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी का फैसला किया गया है। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में भी कमी का फैसला किया गया है। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया। दूसरी स्लैब में 3.5% से कम करके 2% कर दिया गया। तीसरी स्लैब में 3% से कम करके विद होल्डिंग टैक्स 1.5% कर दिया गया। कमर्शियल जायदादों, प्लाटों और घरों के ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। गुज़श्ता बजट में 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई थी। 10 मरले तक घरों और 2000 मरबा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान किया गया है। हुकूमत का मॉर्गेज फाइनेंसिंग को भी फरोग देने का फैसला। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टॉक पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आइंदा माली साल के बजट में पानी और आबी ज़खायर से मुतालिक जंगी बुनियादों पर इक़दामात का अज़म किया गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि भारत पानी को बतौर इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। पानी पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है, इसमें किसी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ताहम इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम अपने आबी वसाइल में जंगी बुनियादों पर इजाफा करें। हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद पानी के ज़खायर के मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। जल्द ही इस हवाले से एक तफसीली हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान को भारतीय आबी जारहियत के साथ साथ पानी की किल्लत, फूड सिक्योरिटी, पहाड़ी नदी नालों से आने वाले तोगयानी रेलों की रोकथाम, सैलाब की रोकथाम के इक़दामात और मौसमियाती तब्दीली के मसाइल जैसे चैलेंजेस का सामना है। सुप्रीम कोर्ट के लिए माली साल 2025-26 के लिए 6.64 अरब रुपए के अखराजात के मुख्तस कर दिए गए हैं। मुलाजमिन की तनख्वाहों और अलाउंसेस पर 3.26 अरब रुपए से ज़ायद खर्च किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक अफसरान की तनख्वाहों के लिए 54 करोड़ और दीगर अमले के लिए 91 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। असासाजात की खरीदारी के लिए 42 करोड़ और तरक्याती कामों पर 45 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर 23 करोड़ रुपए 80 लाख रुपए का बजट रखा गया है, जबकि ग्रांट, सब्सिडीज और कर्जाजात की माफ़ी की मद में 2 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑपरेटिंग अखराजात का बजट 1.03 अरब रुपए रखा गया है। नाज़रीन, माली साल 2025-26 के लिए 17,573 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया, जिसमें 6,501 अरब रुपए खसारा है। 8,207 अरब सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। दिफा के लिए 2,550 अरब मुख्तस किए गए हैं। बजट में तनख्वाहदार तबके, प्रॉपर्टी के शोबे को रिलीफ मिला है। सोलर पैनल की दरामद पर भारी टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आइंदा माली साल के लिए 17,573 अरब रुपए का बजट पेश किया। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान इक़्तिसादी तरक्की की शरह 4.2% और अफराती दर 7.5% रहने की तवक्को जाहिर की गई। बजट खसारा GDP की 3.9%, जबकि प्राइमरी सरप्लस 2.4% रखने का हदफ मुकर्रर किया गया। FBR के महसूलात का हदफ 14,131 अरब रुपए, जबकि सूबों को 8,206 अरब रुपए दिए जाएंगे। विफाकी नॉन टैक्स आमदनी का तखमीना 5,147 अरब रुपए, खालिस आमदनी 1,172 अरब रुपए रखी गई है। विफाकी हुकूमत के कुल अखराजात 17,573 अरब रुपए होंगे, जिसमें सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मख्तस किए गए। दिफाई बजट 2,250 अरब रुपए, जबकि सब्सिडी की मद में 1,186 अरब रुपए रखे गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब रुपए रखे गए। ग्रांट्स की मद में 1,928 अरब रुपए की रकम मख्तस की गई। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के लिए 1,000 अरब
रुपए, जबकि कराची से चमन शारा N25 के लिए 100 अरब रुपए मख्तस किए गए। ज़राअत को 4 अरब रुपए और हायर एजुकेशन को 38.5 अरब रुपए की रकम दी गई। साइंस और टेक्नोलॉजी के 31 मंसूबों के लिए 4.8 अरब रुपए और उमूमी तालीम के लिए 18.5 अरब रुपए मख्तस किए गए। दार स्कूल के क़याम के लिए 9.8 अरब रुपए, सेहत के 21 बड़े मंसूबों के लिए 14.3 अरब रुपए और गवर्नेंस के लिए 11 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना से खिताब में कहा है कि मुल्क की माशत बेहतर हो रही है, पूरी कौम की काफियों से मुश्किलात से बाहर निकल आए। हुकूमती इक़दामात की बदौलत अहदाफ को हासिल करने में मदद मिली है। वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। जंग में दुश्मन को हमने शिकस्त फाश से दो चार किया। भारत सिंतास माहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। माहदे में कोई ऐसी शिक नहीं है और ना हम बर्दाश्त करेंगे। हम अपने पानी के एक एक कतरे का दिफा करेंगे। मेहनत से और हुकूमत की आप सबकी काविशों से अल्लाह ताला के फजल करम से इस अरसे में पाकिस्तान ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पर अब हमें टेक ऑफ करना है। हमारे तमाम जो स्टेबिलिटी के जो इशारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाइस इत्मीनान हैं। चाहे आपका इन्फ्लेशन रेट है, हालिया जंग में एक बहुत बड़े मुखालिफ से जो कि जंगी क़ुव्वत के हवाले से, माशी क़ुव्वत के हवाले से वो कहता था कि मेरा पाकिस्तान से कोई मुवाजना नहीं है। अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से हमने कन्वेंशनल वॉर में उसको शिकस्त फाश दी है। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर ने बात की इजाज़त का मुतालबा किया। इजाज़त न मिलने पर एहतजाज शुरू कर दिया। अपोजिशन ने डेस्क बजाए और नारे लगाकर एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान ने मुसलसल एहतजाज शोर शराबा जारी रखा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म के गिर्द हिसार बना लिया। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बजट में तनख्वाहें जितनी बढ़ी हैं इसमें हमारा तो गुजारा हो जाता है, लेकिन आम लोगों का गुजारा नहीं होता। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि अपने खर्चे कम करें, मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और टीम को बजट पर मुबारकबाद। कहा कि नवाज शरीफ की रहनुमाई में बेहतरीन बजट पेश किया गया। पहला अवाम, किसान, मुलाजमीन और सनअतकार दोस्त बजट पेश किया गया। बजट पायदार तरक्की के अहदाफ में मुआवन साबित होगा। मरियम नवाज का कहना था कि नया बजट आवाम के लिए खुशी और खुशहाली लाएगा। माइशत की तरक्की का फ़ायदा हर फर्द तक पहुँचाएंगे। IMF प्रोग्राम से निजात का आज़म रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। बजट में मुतवसत तबके को रिलीफ दिया गया। महंगाई में कमी आएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तनख्वाह में 6% इजाफे की तजवीज़ थी, फिर 10% कर दी। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि टैक्स स्लैब्स के अंदर बढ़ा रिलीफ दिया गया है। इनकम टैक्स की शरह में कमी की गई है। बजट में माशत की ग्रोथ पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है। ख़ास तौर पे अच्छी बात है कि जो इनिशियल प्रपोजल थी 6% इंक्रीज़ की वो 10% पे आ गई और फिर उनको बड़ा एक रिलीफ दिया गया है। उनकी टैक्स स्लैब्स के अंदर उनका जो इनकम टैक्स की शरह थी उसमें कमी की गई है, तो एक्चुअल रिलीफ जो है वो 10 से कहीं ज़्यादा हो गया है। इस बजट के अंदर जो इकानमी की ग्रोथ है, GDP है, उस पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है कि ये बड़े। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि बजट में आवाम के लिए हवा के गर्म थपेड़े हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। सिर्फ एक ताज़ा हवा का झोंका है तनख्वाहदार तबके के लिए। हवा की गर्म थपेड़े जो आपने इस्लामाबाद के मौसम में आपने सहे हैं, सिर्फ एक हवा का ताज़ा झोंका है तनख्वाहदार तबके के लिए। 6 लाख से 12 लाख उनकी वो कर दी कि जो 12 लाख कमाएगा वो टैक्स देगा, 6 लाख कमाने वाला ने सालाना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नफीसा शाह का बजट पर रद्द-ए-अमल कहती हैं कि ये बजट ना अमीरों का है ना गरीबों का है, ये IMF का बजट है। उन्होंने कहा कि आज तो अमीर भी मायूस है, गरीब भी मायूस है। कुछ अच्छे इकदाम उठाए गए हैं। महंगाई और इंटरेस्ट रेट में कुछ कमी आई है। ज़राअत बैठ गया है, ज़राअत तारीकियों में डूब रही है। नाज़रीन, JUI फे की रुकन कौमी असम्बली आलिया कामरान का बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बजट में किसी भी तरीके से आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। बजट में हमेशा महरूम तबका ही पिस कर रह जाता है जिसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं होती। तालीम और सेहत पर फोकस करना चाहिए।
तबका ही है। हमेशा इसी तरह से बजट पेश होता आया रहा है और वो भी एक नॉर्मल, समझे कि एक नॉर्मल रूटीन के अंदर एक बजट पेश हो गया। इसमें किसी भी तरीके से जो है आवाम के लिए कोई रिलीफ है ही नहीं और हमेशा से ही भी कोई रिलीफ नहीं रहा, क्योंकि पिस्ता हमेशा जो है वो महरूम तबका ही है जिसके पास रोटी भी नहीं होती खाने के लिए। तालीम, आपकी सेहत, इस तरह की जो मामलात हैं इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। खबरें और भी हैं शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली सबीन का बजट पर रद्द-ए-अमल, कहा कि बजट पर हमारे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम हुकूमत से बात करेंगे। आज बजट पेश किया गया है, इसके बाद आपस में मुशावरत होगी। बजट में तब्दीली आनी चाहिए, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हमारे भी कुछ उस पर तहफ़्फ़ुज़ आते हैं तो वो हम उनसे बात करेंगे। अब उसके बाद जो है वो आपस में ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है, मुशावरत होगी, बैठेंगे, इस पे बात करेंगे। तो बजट में तब्दीली आनी चाहिए, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि महंगाई में कमी के समरात आवाम तक नहीं पहुँच रहे। अगर महंगाई में कमी आई है तो गुर्बत में इजाफा क्यों हो रहा है? तनख्वाहों की निस्बत पेंशन में ज़्यादा इजाफा किया गया। मुज़म्मिल असलम का कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिया। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को हम सिफर पर ले गए थे। 2021 में हमारी ग्रोथ 5.7% और 2022 में 6.7% थी। 2.7% ग्रोथ फार्म 47 की पैदावार है। अगर महंगाई कम हुई है तो गुर्बत भी पाकिस्तान। पेंशन का 7% बढ़ाया और तनख्वाहदार का 10%। पेट्रोल पे इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हम सिफर तक ले आए थे। 2021 में हमारी ग्रोथ थी 5.7, 2022 में हमारी ग्रोथ थी 6.2%। अब 2.7% आपकी ये फॉर्म 47 की ग्रोथ है। नाज़रीन, वफाकी बजट 2025 और 26 खैबर पख्तूनख्वा के लिए उम्मीद की कोई किरण न बन सका। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेरपाव कहते हैं कि फाटा के ज़म अजला के लिए 100 अरब रुपए दिए जाने का वादा था। उन्होंने कहा कि मगर हालिया बजट में सिर्फ 65 अरब का मुख्तस किया जाना नहायत तशवीशनाक अमर है। इस रकम से ज़म अजला पसमानदगी और महरूमियों से नहीं निकल पाएंगे। आफ्ताब शेरपाव ने कहा कि वफाकी PSDP में भी खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोई बड़ी स्कीम का न होना भी सूबे के साथ इस्तेहसाली सलूक दिखाई देता है। मालाकन डिवीजन, फाटा और दीगर इलाकों पर सेल्स टैक्स के तलाक से इन इलाकों के अवाम पर बोझ मजीद बढ़ जाए। अवैस लगारी को वजारत से हटाया जाए। लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद का मुतालबा। कहते हैं कि अवैस लगारी ने 400 अरब का नुकसान किया, कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ताजरों को टैक्स नेट में लाना अच्छा इक़दाम है। सुपर टैक्स में कमी न होना हमारी तजवीज़ के खिलाफ है। 5000 रुपये का नोट बंद करने का मुतालबा मंजूर न हुआ। उन्होंने कहा कि डॉलर मुस्तहकम रहा तो मुआशी हालात बेहतर होंगे। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पेशावर का वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सरहद चैम्बर के अहदेदारों का कहना है कि वफाकी बजट 2025 और 26 कारोबारी तबके के तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। सरहद चैम्बर के सदर फजल महकम खान का कहना है कि हुकूमत से माशियत और कारोबार और इंडस्ट्रीज़ की तरक्की के बजट तजावीज़ पर नज़रसानी करे। सरहद चैम्बर के सीनियर नायब सदर अब्दुल जलील जान ने कहा कि तवक्को थी कि आइंदा माली साल के लिए कारोबार और ताजर दोस्त होगा। ये बजट ऐसा नहीं है कि कारोबार के मजीद जमूत का बायस बनेंगे और मुल्क में कारोबार और सनतों की बहाली की कोशिशों को रोकेंगे। हुकूमत गरीब को मजीद गरीब और अमीर को मजीद अमीर बनाने की पॉलिसी अपना रखी है। नाज़रीन, कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर अख्तर काकड़ ने कहा है कि चमन तक कोयटा शाहरा की तामीर के लिए फ़ंड्स मुख्तस करने पर हुकूमत के मशकूर हैं। बलूचिस्तान में कार्गो सिस्टम आज भी मौजूद नहीं। सूबे के ज़मींदार तबाही से दो चार हो चुके हैं। सोलर सिस्टम पर भी 18% टैक्स आयद कर दिया गया। बलूचिस्तान के लिए 4 दाने स्कूल इंतहाई कम हैं। बजट में गवादर का कोई जिक्र नहीं हुआ। बलूचिस्तान के साहिल और वसाइल पर यहाँ के लोगों का पहला हक है। हुकूमत ने ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कोरियर सर्विस से अशिया मंगवाने पर 18% सेल टैक्स लगेगा। अवाम ने वफाकी बजट में ऑनलाइन खरीदारी पर टैक्स लगने पर नाराजगी का इजहार कर दिया। चीज़ें हैं जिन पे टैक्सेस की कमी कर दी गई है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, ऑनलाइन ख़रीदारी हो गई, या उसके अलावा और भी दीगर मामलात हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुर्बत के हिसाब से अगर हम देखें तो वफाकी हुकूमत का जो बजट है वो अवाम दुश्मन साबित हो रहा है। सिटी से जो भी चीज़ें हम मंगवाते हैं तो उसके ऊपर तो ऑलरेडी टैक्स लगे होते हैं, लेकिन जो कुरियर आते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के ऊपर बहरान है। ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं ऑनलाइन ऑर्डर्स पर, ये मैं समझता हूँ कि नहीं लगने चाहिए, और मैं अपने हिसाब से इसको समझता हूँ कि गैर कानूनी है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो ख़तरनाक हैं या जो बर्डन है ये शागिर्दों के ऊपर है।
जो शागिर्द खुद कमाते हैं और खुद जो कोरियर्स और ऑर्डर्स बाहर से मंगवाते हैं। कुछ एक आध चीज़ें हैं जिन पे खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद के तरक्याती मनसूबों के लिए रकम मुख्तस कर दी गई। इस्लामाबाद सेफ सिटी, मिनिस्टर इनक्लेव अपार्टमेंट्स, अरकान पार्लियामेंट की रिहाइश गाहों और 500 सर्वेंट क्वार्टर्स, दानिश स्कूल, कचहरी में सहूलत सेंटर, इस्लामाबाद में कैंसर अस्पताल, सेक्टर I-16 में जेल और दीगर मनसूबों के लिए भारी रकूम मुख्तस कर दी गई हैं। इस्लामाबाद सेफ सिटी के लिए 3 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2 अरब रुपए, मिनिस्टर्स इनक्लेव में अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए 13 करोड़ रुपए, अरकान पार्लियामेंट के लिए फैमिली रहायशगाह और 500 सर्वेंट क्वार्टर्स बनाने के लिए 2.5 अरब रुपए, इस्लामाबाद के स्कूलों में सहूलियात की बेहतरी के लिए 90 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद के स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए खुसूसी सेंटर्स के लिए 14 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद के इलाके कुरी में दानिश स्कूल बनाने के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए, रावल झील और कोरंग दरिया पर 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की तंसीब के लिए 10 करोड़ रुपए। इस्लामाबाद मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।